Okay, friends, once again, very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last session, we had solved some numerical based on this chapter. And there are some theory, 3 or 4 theory are still left, and there are some numerical, 3 or 4 numericals are left. Probably today we are going to complete this session, this lecture, this chapter. In the next lecture, I'm going to solve some question, textual MCQ I'm going to solve. In every chapter, this will be the method that some textual MCQ that I had given you to solve, I had given in the as MCQ. So I'm going to solve that questions. And then after the self-learning question you have to solve and you need to ask the doubts. So today, with respect to theory and numerical, I will complete this chapter. Secondly, in the next lecture, I am going to solve a textual MCQ that I had already sent you in the PDF form. And in that, after that, in the lecture, the next to next lecture, you will ask me the doubts of the self-learning. Friends, probably in your board examination, there are 50% weightage of the MCQ. In the CBSE students also, there are 25 marks. From 80 marks, 25 marks are based on the objective question. So, if you solve the MCQ, it will help in the objective questions in the CBSE as well as for the Gujarat board student. Apart from that, when you solve the MCQ, it will tremendously benefit you in the JEE and the NEET examination as well. And a good set in the good set examination, I'm very damn sure that in the good set examination, whatever the MCQ I am providing, the question will be either directly asked from that notes or it will be based on that. In the good set, definitely, definitely the question will be based on that. So, friends. Today, I'm going to complete the theory of this chapter. Only one topic is left, and that topic named as a potentiometer. Friends, my target is to measure the cell potential, that is the EMF of the cell. चलो अभी मेरा जो टारगेट है मुझे सेल का EMF मेजर करना है. After all, the EMF is nothing but it is also a potential difference. आपको शायद पता होगा कि EMF का डेफिनेशन क्या है. When there is no current flowing from the cell, at that time the potential across the two terminal of the cell is defined as the EMF of a cell, and that is also named as the potential of a cell. But when the current is flowing from the cell, at that time the potential difference between the two terminal of a cell is defined as its a terminal voltage. तो जब करंट सेल में से पास नहीं हो रहा है, so at that time the potential difference across its two terminal is defined as a EMF, and जब करंट पास हो रहा है तो at that time उसके दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज. तो वो चीज हमको पता है. अब मेरा जो टारगेट है वो मुझे EMF फाइंड करना है. सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब सेल का EMF मुझे फाइंड करना है. उसका यूनिट तो वैसे भी वोल्ट ही है, मतलब वो एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट ही है. तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा डिवाइस है, कोई बताएगा? Which device we use to measure the voltage? बैटरी. अरे बैटरी पोटेंशियोमीटर. नहीं, पोटेंशियोमीटर हम यूज नहीं करते. वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? वोल्ट मीटर ऑब्वियसली. तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वोल्ट मीटर का यूज करूंगा तो मुझे सेल का जो वोल्टेज है, सेल का जो EMF है वो मुझे मिल जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा है. तो मैं क्या करूंगा, लेट दिस इज द सेल वी हैव. उसका मुझे EMF मेजर करना है. उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे होता है सेल के अंदर, बट मैं उसको बाहर की साइड वो है, उसका प्रेजेंस है, वो शो करने के लिए मैंने उसको बाहर से बताया. बट एक्चुअली इट इज इनसाइड द सेल. इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम द सेल. इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द सेल.
अब मुझे क्या करना है कि ये ईएमएफ को मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा लॉजिक मुझे ऐसा बता रहा है कि भाई मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो वो डिवाइस के साथ आपको उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। बट जैसे ही मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो मतलब क्या होगा कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमको पता है कि भाई when the current is flowing from the cell, the potential difference across the two terminal of a cell will not be remains its EMF, will becomes its terminal voltage. So now the potential across the A and B will not be becomes the EMF, it becomes the EMF minus IR, terminal voltage. तो फ्रेंड्स मुझे वोल्ट मीटर कुछ मेजर करके देगा, उसका मुझे रीडिंग तो मिलेगा, बट कोई मुझे बताएगा वोल्ट मीटर मुझे क्या मेजर करके देगा? वोल्टेज। हाँ, तो वोल्ट मीटर मुझे वोल्टेज मतलब अभी कौन सा वोल्टेज मुझे बता वो देगा मुझे? टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, सो वोल्ट मीटर नाउ मेजर द टर्मिनल वोल्टेज। और मेरा टारगेट क्या है फ्रेंड्स अभी? ईएमएफ का पोटेंशियल फाइंड करना हाँ, है। मुझे सेल का ईएमएफ मेजर करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अगर मैं वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूं तो मुझे ईएमएफ मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई कम टू नो दैट द वोल्ट मीटर विल नॉट गिविंग अस अ ईएमएफ, इट विल गिव्स अस द टर्मिनल वोल्टेज। तो अभी थोड़ा और मैं सोचने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई क्या करना चाहिए इसमें। तो अगर मैं कुछ भी करके करंट को जीरो कर दूं, या कुछ भी करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दूं, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके दो टर्मिनल के बीच का वो ईएमएफ जितना हो जाएगा, तो ईएमएफ मेजर हो जाएगा। मतलब ईएमएफ का मेजरमेंट करने के लिए आइदर आई हैव टू मेक द करंट फ्रॉम द सेल जीरो, और आई नीड टू मेक द इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। अब फ्रेंड्स सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? तो सेल जो होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज बिकॉज ऑफ दैट केमिकल इनसाइड द सेल, दैट इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो करना है तो मुझे वो केमिकल निकाल देना पड़ेगा, तो फिर वो सेल नहीं होगा, फिर वो सेल रह गए, वो सेल रहेगा ही नहीं। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो करो ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज अगर वो करने का ट्राई करोगे तो वो सेल ही काम नहीं करेगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, वो तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब मुझे ऐसा ट्राई करना चाहिए कि करंट जीरो हो जाए। तो प्रैक्टिकली अगर मैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, if the resistance of the voltmeter becomes infinite, then as you know कि current flowing from only single battery is there, then you know that EMF upon out external resistance plus internal resistance। अगर मैं ये external resistance जो voltmeter है उसको मैं infinite कर दूं, वो सेल के साथ जो वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है उसका अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो ये करंट जीरो हो जाएगा। बट फ्रेंड्स जनरली जो वोल्ट मीटर होते हैं उसके रेजिस्टेंसेस 5000 वोल्ट 5000 ओम टू 6000 ओम होता है, मतलब 5 किलो ओम टू 6 किलो ओम होता है, वो इनफाइनाइट नहीं होता है। अगर वो इनफाइनाइट होता तो करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, तो रीडिंग कहाँ से मिलेगा हमको? वोल्ट मीटर में से करंट ही पास नहीं होगा तो उसका रीडिंग मिलेगा ही नहीं। मतलब ये दोनों में से एक भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। नाइदर यू कैन मेक द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जीरो, नॉर यू कैन मेक द करंट फ्रॉम द सेल इज जीरो। तो मतलब कुछ भी कर लो आपको जो वोल्ट मीटर मेजर करके देगा वो क्या देगा? वोल्टेज। कुछ भी कर लो आपको जो वोल्ट मीटर मेजर करके देगा वो क्या देगा? टर्मिनल वोल्टेज। वो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके देगा, वो हमें सेल का ईएमएफ मेजर करके नहीं देगा। तो सेल का ईएमएफ मतलब उसका पोटेंशियल अगर मेजर करना है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दे तो तो इलेक्ट्रोड के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है ना मैंने।
तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोड के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है। बताओ कैसे बता रहे हो? देखो मैं आपको, चलो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, बताओ मुझे, मैं आपको नोटेशन करने का अलाउ कर रहा हूँ। बताओ क्या कह रहा हो, बताओ। कहाँ पे कनेक्ट करना है? सर सर मतलब डायरेक्ट मतलब एकदम अंदर से जो हाफ डीप इलेक्ट्रोड होते हैं ना वही से। मतलब यहाँ से? नहीं सर मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ये क्या है, इसमें एक ये इलेक्ट्रोड और एक ये इलेक्ट्रोड। तो हम बैटरी तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, पर अगर ईएमएफ फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ ही कनेक्ट कर देना, मतलब ऐसा कुछ। ये सेल के अंदर से थोड़ी ना कनेक्शन करोगे आप। सेल के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो सेल के अंदर जाके आप कनेक्शन करने की बात कर रहे हो। ये सेल जो है ना, वो तो एक बार बन गया तो बन गया, खत्म। अब अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको कनेक्शन आप जो भी कर सकते हो, क्या कहाँ पे कर सकते हो? यहाँ पे ही कनेक्ट। तो ये मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बस तो यही हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। बोलो। तो करंट फ्लो होगा ही होगा इलेक्ट्रोलाइट में से, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप आईआर जितना होगा ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? मुझे मेजर करके देगा ई माइनस आई आर करके देगा। मतलब कुछ भी कर लो आप, चाहे कुछ भी लगा लो, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। You can never measure the EMF of a cell by the help of the voltmeter. Voltmeter always measure the terminal voltage of a cell. तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि वोल्टमीटर तो काम नहीं करेगा, बट कोई ऐसा डिवाइस सोचना चाहिए कि जो सेल का ईएमएफ मेजर करे। And that is why the new topic comes into the existence, and the topic is a potentiometer. So friends, the potentiometer is a device by which we are able to measure the EMF of a cell. पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर वो कोई मीटर नहीं है जो जैसे ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग हमको बताता है, रीडिंग उसमें पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा कुछ होता है। मतलब वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर में ऐसा होता है, बट पोटेंशियोमीटर का खाली नाम का मीटर है, बट वो मीटर नहीं है, कोई उसमें कोई पॉइंटर नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, एक सिंपल सी सर्किट है, बट उसको मीटर इसलिए बोला गया है कि बिकॉज ऑफ दैट सर्किट वी आर एबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ सेल, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज अ पोटेंशियोमीटर। बट वो कोई पॉइंटर डिफ्लेक्ट होने वाला मीटर नहीं है। तो अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि व्हाई डज द वोल्ट मीटर इज अनेबल टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो वो मैंने अभी आपको बताया। अब हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा सेल का ईएमएफ कैसे मेजर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, बट before that we will derive the principle of a potentiometer. So friends, the question is very important. अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, and the question is derive the principle of potentiometer. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पोटेंशियोमीटर एक कोई मीटर नहीं है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर। फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। एंड मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बताया कि वो कोई मीटर नहीं है, वो एक सिंपल सा सर्किट है। तो वो सर्किट में क्या होता है,
तो वो सर्किट के अंदर एक बैटरी होती है जिसके ईएमएफ हम ऑलरेडी जानते हैं, उसका मेजरमेंट नहीं करना है। वो स्टैंडर्ड बैटरी है, उसका ईएमएफ मुझे पता है। वो बैटरी का भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। वो एक्चुअली होता है अंदर की साइड, बट वो शो करने के लिए मैंने उसको बाहर से बताया। और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करूंगा, मतलब एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट करूंगा, उसका वैल्यू R है। एंड ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स एंड बैटरी जो है ना, उसके साथ मैं एक वायर कनेक्ट करने वाला हूं। और वो जो रेजिस्टिव वायर होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में एक रेजिस्टिव वायर में कनेक्ट करने वाला हूं। सो दिस रेजिस्टिव वायर इज नेम्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। ये है ना बहुत ही बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा होता है, इसके वजह से हम इसको ए एंड बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ए एंड बी के बीच में हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, बट हम उसको जिगजैग पैटर्न में कनेक्ट करेंगे। मैंने बताया ना वो बहुत बड़ा होता है, तो इसको अगर जिगजैग पैटर्न में करते हो ना, तो क्या होगा कि ये बेनिफिट ये रहेगा कि जिगजैग पैटर्न में अगर रखते हैं तो बेनिफिट ये रहेगा कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो ऐसे जिगजैग पैटर्न में, मतलब है तो एक सिंगल वायर, उसको डायरेक्टली एक से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, या फिर ऐसे घुमा घुमा के कनेक्ट करो। बड़ा वायर है ना, इसलिए ये जिगजैग पैटर्न जरूरी है। बट वो है सिंपल सा एक रेजिस्टिव वायर है। मतलब तीन चीज ही है यहाँ पे, तीन चीज को कनेक्ट करके एक क्लोज्ड नेटवर्क बनाया है, क्लोज सर्किट बनाया है। कौन कौन से तीन चीज? एक है बैटरी, दूसरा है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, एंड तीसरा है पोटेंशियोमीटर वायर। बस ये तीन चीज को मिला के एक सर्किट बनाया, और ये जो सर्किट है उसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? इसी को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि सर ये पोटेंशियोमीटर जो है उसका यूज हम बैटरी के ईएमएफ का मेजरमेंट करने के लिए कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं? तो वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको। वो जो है ना बैटरी का ईएमएफ कैसे मेजर होता है, दैट इज द क्वेश्चन वी विल डिस्कस आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिराइव करेंगे। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर जो है ना, उसका लेंथ अज्यूम कर लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो L है, कैपिटल L है। लेट द लेंथ ऑफ potentiometer wire is capital L, and its resistance per unit length is a resistance per unit length is a rho. Friends, this is the only theory. This is the only theory in the whole third chapter in which rho is not the resistivity. This is the only theory in which the rho is a resistance per unit length. It is not the resistivity, it is a resistance per unit length. तो चलो कोई मुझे बताएगा what should be the resistance of the potentiometer wire? उसका टोटल लेंथ कैपिटल L है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ उसका रेजिस्टेंस रो है। तो कोई बताएगा व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर?
Royal. Obvious. Okay, good. So resistance of potentiometer wire is equals to rho into L. पर यूनिट लेंथ रो है तो एल लेंथ का कितना, 1 के लिए रो, तो एल का हो जाएगा रो एल। चलो अब मुझे सोच के बताओ कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट। अब ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस है। एक जो सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, एक का रेजिस्टेंस बॉक्स का एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और एक पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है रो एल। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किटरी, तो टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज अ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो इनटू कैपिटल एल। तो अब मुझे बता दो कि करंट कितना फ्लो होगा। आपको पता है कि अगर एक ही बैटरी है तो आप क्या लिखते हो, करंट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो स्मॉल आर है, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल, तो टोटल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, सोचो, कोई बताएगा व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस। Capital R plus rho L. या कैपिटल आर प्लस रो एल प्लस स्मॉल आर तो है ही। तो दिस इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किटरी। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा एंड नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा, तो इतना करंट फ्लो होगा। नाउ अज्यूम दैट द पॉइंट सी इज हियर, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में स्मॉल एल लेंथ है। लेट AC is equals to small l. So resistance between point A and C, कोई मुझे बताएगा ये उसको मैं अगर R1 बोलता हूँ, RL बोलता हूँ, तो कोई मुझे बताएगा कि ये A एंड C के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। रो स्मॉल एल। हाँ, रो स्मॉल, परफेक्ट। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है ना, यूनिट लेंथ का वो रो है, तो 1 का रो तो स्मॉल एल का कितना होगा, तो रो इंटू स्मॉल एल होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको, इज इट ओके? चलो तो હવે friends, now I want to find the potential across the A and C. So friends, हमारा जो टारगेट है वो A एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, कोई भी रेजिस्टेंस का अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट इनटू दैट रेजिस्टेंस। तो ए एंड सी का रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि रो इनटू स्मॉल एल है, और हमने ये सर्किट, पूरे सर्किट में से सभी ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है वो भी हमने प्रूव कर दिया है कि ईएमएफ अपॉन आर प्लस रो एल प्लस स्मॉल आर है, ईएमएफ अपॉन आर प्लस रो कैपिटल एल प्लस स्मॉल आर है, एंड इनटू क्या होगा, रो इनटू एल होगा। मतलब पोटेंशियल अक्रॉस दी potential across this A and C point can be given by E rho, where E is the EMF of the potentiometer circuit, upon R plus rho capital L plus small r
into a small l. तो फ्रेंड्स ये मुझे मिल गया पोटेंशियल अक्रॉस द ए एंड सी। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है अक्रॉस द पॉइंट ए एंड सी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। So potential between the point A and C is directly proportional to the wire length between the point A and C. And this is what is the principle of the potentiometer. देखो यहाँ पे ये सारा जो चीज है ना वो सभी कांस्टेंट है। एक बार हमने पोटेंशियोमीटर फॉर्म कर दिया तो ये सारे टर्म्स जो है ना वो कांस्टेंट है। हम ये पॉइंट को ही मतलब स्लाइड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर के अलग अलग पॉइंट को सोचते हैं तो स्मॉल एल चेंज होगा, बट बाकी ये सारा चीज कांस्टेंट है। इसको हम सिग्मा कह देंगे। तो फाइनली ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, potential difference across any of the 2 point on the potentiometer wire that is directly proportional to the length of the wire between that 2 points. So this is what is the principle of the potentiometer. तो फ्रेंड्स ये चीज तो आपको प्रिंसिपल तो समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल सा एक नेटवर्क है, 3 रेजिस्टेंस है, उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है और एक पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना फ्लो हो वो मुझे मिल गया। उसके बाद कोई भी 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया और उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर दिया, तो पता चला कि वो पोटेंशियल डिफरेंस एल के इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो ये प्रिंसिपल तो हो गया, बट मेरा मेन टारगेट क्या है? व्हाट इज आवर मेन टारगेट? आवर मेन टारगेट इज टू फाइंड द EMF. हाँ, इज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द अननोन्स बैटरी। तो मुझे पोटेंशियोमीटर के द्वारा कोई अननोन ईएमएफ को मेजरमेंट करना है। तो वो तो अभी मतलब लिंक ही नहीं, कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है। ये प्रिंसिपल कहाँ पे और वो मेजरमेंट कहाँ पे, कुछ लिंक नहीं हो रहा है। तो एक आध मिनट में सारा कुछ मतलब 5-1 मिनट में सारा कुछ लिंक हो जाएगा। वो सभी लिंक हो जाएगा। कैसे लिंक होगा? 5 मिनट वेट करो। बट अभी क्या ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया? मतलब ये Yes, sir. ओके। So, just a minute. Anirudh Singh, Anirudh is there? Yes, sir. Anirudh, તમને હું ટાઈમિંગ કહીશ, મેં હજી કીધા નથી. અચ્છા, તો સર તમે મેસેજ સવારે કર્યો તો મને લાગ્યું અત્યારનો છે એટલે. ના ના. ઓકે, બાય. Okay. So friends, अभी मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो तो आपको क्लियर हो गया। अब लिंक क्या है, वो लिंक इसके प्रिंसिपल के साथ वो मेजरमेंट का लिंक क्या है वो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। पर अगर कोई आपको पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन पूछते हैं, कोई पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन पूछता है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि पोटेंशियोमीटर इज अ सिंपल सर्किट or device by which we can measure unknown potential difference, and we can also obtain the potential difference. So we can measure and we can obtain the potential difference. So this device is called the potentiometer. Potentiometer is a device which is used to measure and to obtain the potential difference. अब पोटेंशियोमीटर के द्वारा कैसे ईएमएफ का मेजरमेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स चेक आउट व्हाट वी हैड लर्नड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 34 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट अ सिंपल टेबल वोल्टमीटर measures the terminal voltage of a battery, not its EMF. Explain this statement. तो वही एक्सप्लेन किया है कि simple table voltmeter is connected between the 2 terminals of a battery as shown in figure. It will measure the potential difference with which is the terminal voltage of a battery. Why? Because if the internal resistance of a battery is why, तो वो यहाँ पे लिखा नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे
तो करंट पास होगा। तो आपको पता है कि जब करंट पास होता है तो वो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल मेजर द टर्मिनल वोल्टेज। फिर दिया हुआ है कि भाई इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज आर, so the during the voltage measurement the current flowing through the battery, and hence according to the equation V is equals to E minus IR, IR ऊपर नीचे हो गया है तो E minus IR, तो वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, but if the current is taken to be 0 then V becomes E and the terminal voltage becomes the battery voltage. But the problem is the internal resistance of a battery can never be 0. Hence, when the current does not flow through the battery, that is open circuit, after connecting voltmeter across it, then the voltmeter would give the EMF, otherwise not. But for that, the resistance of the voltmeter should be infinite. But in the practical life, a simple voltmeter has a resistance only of the 5 kilo ohm to 6 kilo ohm. And hence, there will be some current will pass from the voltmeter. And in that kind of circumstances, as the current slide very small, but the current is going to pass from the voltmeter, and because of that it will not measure the EMF, it will always measure the terminal voltage. So to measure the EMF we will use the potentiometer. तो ये voltmeter तो काम नहीं आएगा, अब potentiometer के बारे में सोचते हैं। तो what is potentiometer? Explain the principle of the potentiometer. तो अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें पोटेंशियोमीटर क्या है एंड उसका जो प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आएगा, बट यू विल नॉट बी आइडेंटिफाई, इवन you will not be able to link how this device will will be used as a EMF measuring device. तो आप लिंक भी नहीं कर पाओगे अभी, बट कोई बात नहीं, अभी आप प्रिंसिपल को तो समझ लो। तो potentiometer is a device in which continuously varying potential difference can be obtained and can be measured also, जिसके द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। So potentiometer is a nothing but it is a very simple circuit which is consist of a battery, resistance, box resistance and nothing but a potentiometer wire. तो ये तीन चीज को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। As shown in figure, a battery is having a EMF E, internal resistance R is connected with the resistance box capital R, and with the uniform cross-section area A is connected in the series. Resistance box is not always required. It is not required always. If the length of the wire is L and the resistance per unit length is rho, अगर resistance per unit length rho है, wire का length L है, then the resistance of the wire AB is equals to rho into L. And let the value of the resistance obtained used from the resistance box is R. Resistance box का resistance हम R assume कर लेते हैं. Then the current flowing through the wire will be equals to net EMF upon net resistance. Net EMF E है, net resistance R plus rho L plus R है. अब वो AC ब्रांच का मैंने लेंथ लिया और उसका रेजिस्टेंस मैंने rho L assume किया, तो AC ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो I into R, I rho L, और I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे पता चल गया कि V है ना, V प्रोपोर्शनल टू L है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि V यहाँ पे ऐसा implies that VL proportional to L, VL proportional to L ऐसा है। So where a sigma or phi or k is called the potential. देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ। चलो ये प्रिंसिपल तो खत्म हो गया। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो वो तो आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया। बट मैं थोड़ा आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है ना, तो वो दो हिसाब से वेराई कर सकती है। कोई मुझे बताएगा कि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी कौन से दो पैरामीटर्स के साथ वेराई हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? फंक्शन के हिसाब से। हाँ, कोई भी फिजिक्स के अंदर कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है तो वो दो पैरामीटर्स के साथ वेराई हो सकती है। कौन से दो पैरामीटर्स? वेरिएशन ऑफ द क्वांटिटी कैन बी पॉसिबल बाय टू वे। एक तो उसका वेरिएशन टाइम के साथ हो सकता है,
और दूसरा उसका वैल्यू टेम्परेचर, नहीं 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 डिस्टेंस, हाँ, दो हिसाब से वो वेराई हो सकता है। एक टाइम के साथ वेराई हो सकता है या दूसरा उसके पोजीशन के साथ वेराई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर टाइम के साथ वेराई हो रहा है तो उसको रेट बोलेंगे, उसको रेट बोलेंगे। और कोई भी क्वांटिटी का अगर पोजीशन के साथ वेरिएशन है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इट इज सेड टू बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो फ्रेंड्स ये टाइम के साथ जो वेरिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको रेट बोलते हैं। बट अगर पोजीशन के साथ वेरिएशन होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे डेल्टा टी बाय टेम्परेचर का पोजीशन के साथ वेरिएशन है तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी का अगर पोजीशन के साथ वेरिएशन है तो उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेडियंट कब आएगा और रेट कब आएगा आपको पता चला? जब पोजीशन के साथ वेरिएशन है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, एंड जब टाइम के साथ वेरिएशन है तो उसको रेट बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे जो VL का जो फॉर्मूला मिला, तो ये VL क्या है फ्रेंड्स? बताओ मुझे, ये VL क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाय लेंथ, मतलब डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ये वोल्टेज है अपॉन डिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको बताया कि अगर वेरिएशन चेंज जो होता है वो पोजीशन डिस्टेंस के, ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। and why now you understood why it is named as a potential gradient? हाँ सर। तो इसको अभी आपको समझ में आया, इसको क्यों पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं? so नहीं सर, समझ गए। so that is known as a potential gradient. तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट को कभी कभी हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कभी हम उसका सिंबल कभी फाई लेंगे या कभी सिग्मा लेंगे या कभी के भी ले सकते हैं। ये सारा चीज हम कर सकते हैं। तो फाई, सिग्मा या के जो है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। उसको क्यों पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला वो अभी आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो क्वांटिटी का अगर टाइम के साथ वेरिएशन है तो उसको रेट ऑफ दैट क्वांटिटी बोलते हैं, एंड अगर पोजीशन के साथ उसका वेरिएशन है लेंथ के साथ या डिस्टेंस के साथ, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे फ्रेंड्स। तो अभी वो क्वेश्चन तो वही का वही है। कौन सा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन तो वहां का वहां ही पड़ा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? ईएमएफ फाइंड EMF, हाँ, कि भाई ये पोटेंशियोमीटर हम पढ़ रहे हैं, उसका रीजन तो ये है कि हमें हमें कोई बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है। तो ये बताओ कि ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? ये प्रिंसिपल को छोड़ दो, वो तो समझ में आ गया, बट ईएमएफ कैसे मेजर होगा तो वो चीज अब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो, ये प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि हाउ you will find the EMF of a cell by the help of the potentiometer. And alternatively, it can also be asked as a explain the method to compare the EMF of a two cell by the potentiometer. दो अलग अलग सेल के EMF का कंपैरिजन पोटेंशियोमीटर के द्वारा कैसे होता है वो एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे होता है या कोई अननोन ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सारे थ्योरी ऐसे है कि अगर आप ये लेक्चर अटेंड नहीं करते हो तो ये आपको समझ में आना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कोई अननोन सेल है उसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है।
तो वो ईएमएफ कैसे मेजर हो सकता है वो अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। बोलो बोलो बोलो, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, सर्किट का एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, सर्किट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए मैं ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसको इन प्लेस ऑफ अ जिगजैग पैटर्न उसको मैं एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सर्किट तो वही का वही है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में वायर तो कनेक्ट किया हुआ ही है, बट वो आपको समझने में दिक्कत ना हो और सर्किट सिंपल हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया कि वो वायर को जिगजैग पैटर्न के साथ शो करने के बदले मैंने उसको डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया। चलो, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। चलो, वंशिका है वहां पे, वंशिका। वंशिका इज देयर? हार्दी इज देयर? हार्दी, हार्दी है वहां पे? हार्दी, ऋषि है वहां पे? ऋषि, Yes, sir. चलो टारगेट क्या है हमारा? EMF of the cell. हाँ, मुझे ईएमएफ फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस बैटरी का ईएमएफ मुझे मेजर करना है, जिसका ईएमएफ मुझे मेजर करना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए के साथ कनेक्ट करूंगा। जिसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल में पॉइंट ए के साथ कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूंगा एंड गैल्वेनोमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉइंट की एक स्लाइडिंग की होता है, तो वो मैं उसके ऊपर ये पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर मैं स्लाइड करूंगा। तो मैं कब तक स्लाइड करूंगा? जब तक मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ना मिले तब तक मैं वहां पे उसको स्लाइड करूंगा। तो लेट C1 इज द लोकेशन एंड इट इज ऑब्टेन एट द लेंथ L1। ये AC1 इज इक्वल्स टू L1। तो मुझे क्या मिला कि भाई मुझे वो जो नल, इसको नल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो when performing experiment, a null point is found to be at C1 where AC1 is equals to L1। तो A एंड C1 के बीच का डिस्टेंस L1 है। चलो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब कि ये बैटरी में से भी करंट पास नहीं हो रहा है। चलो मुझे ये बताओ कि अगर बैटरी में से करंट पास नहीं हो रहा है तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल? EMF। हाँ, that will be equals to its EMF as a current is not flowing from a battery, potential difference across it will be equals to its EMF। चलो, अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों ब्रांच, ये ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2 कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है?
ये दोनों ब्रांच कौन से पैरेलल। पैरेलल में है? तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है, क्या सेम हो, चलो और मोर प्रिसाइजली क्या सेम होता है पैरेलल में? वोल्टेज। तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो किन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा? तो ये ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 का वोल्टेज सेम हो जाएगा। पैरेलल का कंसेप्ट अप्लाई किया, टेक्स्ट बुक के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया हुआ है। So applying Kirchhoff second law for this loop, for the given loop, ऐसा करके प्रूव किया हुआ है कि पोटेंशियल अक्रॉस द L1 लेंथ इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। अब आपको पता है कि बैटरी का जो अक्रॉस द पोटेंशियल जो है ना, वो तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, उसका ईएमएफ जितना हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के अंदर वो किरचॉफ लॉ से प्रूव किया हुआ है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो दोनों के वोल्टेज सेम हो जाएंगे। तो across the AC voltage across the AC1 branch is equals to voltage across the E1। तो E1 ब्रांच का वोल्टेज तो बैटरी का वोल्टेज तो E1 ही होगा, इसका EMF होगा बिकॉज करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो VL1 is equals to E1। तो उल्टा भी लिख सकता हूँ ना मैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस द L1 लेंथ। तो अभी हमने प्रिंसिपल प्रूव किया था, L1 लेंथ potential can be given by E rho upon R plus a rho L plus a small r into L1। अभी मैंने प्रूव। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन मुझे मिला, ये जो इक्वेशन मुझे मिला उसके अंदर सारे चीज नोन है। देखो ये जो EMF E rho अपॉन R प्लस रो एल प्लस आर, वो तो पोटेंशियोमीटर का इंटरनल पार्ट है। ये पूरा चीज पोटेंशियोमीटर हमने ही डिजाइन किया हुआ है। तो बैटरी है, उसके अंदर जो बैटरी है उसका ईएमएफ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो आरती बचनिया, आरती आरती Yes, sir. वहां से कुछ आवाज आ रही है आपके वहां से। ओके। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी पैरामीटर्स है वो तो सर्किट हमारा खुद का है, वो पोटेंशियोमीटर हमने खुद बनाया है। तो उसके सारे पैरामीटर मुझे पता है। और ये L1 डिस्टेंस कैसे मिलेगा? वो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के नीचे ये जो वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर, वो जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो पोटेंशियोमीटर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वायर के नीचे स्केल स्केल पड़ा होता है, वहां पे स्केल पड़ा होता है। तो वो स्केल के द्वारा आपको ये L1 लेंथ कितना होता है वो स्केल के द्वारा मिल जाएगा। मतलब ये सारे पैरामीटर्स अब आपको नोन है। तो इसके अंदर वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको वैसे VL1 मिलेगा, बट VL1 जो है वही क्या है एक्चुअली, वही तो हमारा EMF है। So now you understood how we are able to measure the unknown resistance by the help of the potentiometer, unknown EMF by the help of the potentiometer। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। सपोज मुझे वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करना है, ये पैरामीटर्स मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो और एक चीज हम कर सकते हैं, रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर द अनदर बैटरी having EMF E2 which is known to you, which is already known to you. Repeat the whole experiment for the another battery which already known to you, and once again find the null point. So once again finding the null point, we can say that in the parallel combination, so doing this experiment again for the battery 2, for a battery or a cell of EMF E2, let the null point is obtained, null point is obtained at C2 where
AC2 is equals to L2. तो वंस अगेन मैं यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ कि वापस से वो पैरेलल में होगा. अब बैटरी 1 को भूल जाओ, बैटरी 1 को भूल जाओ, तो बैटरी 2 is equals to VL2, and VL2 is equals to, I can say, E rho upon R plus rho L plus small r as it is into L2, मतलब ये हो जाएगा सिग्मा L2. तो ये मुझे मिल गया सिग्मा L2. तो फ्रेंड्स, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2, from the equation number 1 and 2, I can say that from equation number 1 and 2, I can say that E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इक्वेशन को ध्यान से देख लो. तो ये इक्वेशन दो चीज हमें बताती है. एक चीज ये बताती है कि अगर दोनों बैटरी मुझे अननोन है, दोनों बैटरी अननोन है, तो भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुझे L1 एंड L2 तो वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिल जाएगा. तो ये L1 अपॉन L2 का रेशियो भी मिल जाएगा. अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि E1 इज ग्रेटर देन E2. अगर वो लेस देन 1 है तो आई कैन से E1 इज लेस देन E2. तो मतलब कंपैरिजन आई कैन डू. तो दोनों बैटरी के EMF के कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं. और दूसरी बात कि सपोज कि एक बैटरी आपको नोन है, एक जो सेल है उसका EMF आपको नोन है, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा L1 एंड L2 तो आपको मिल जाएगा, और कोई एक सेल का EMF आपको नोन है तो ऑब्वियसली आप अननोन सेल का EMF मेजर कर सकते हो. तो फाइनली दिस वे we can measure the EMF of the unknown battery. We can also compare the EMF of the two batteries. So this is the way the potentiometer works. तो फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर के द्वारा दो बैटरी के EMF का कंपैरिजन कैसे होगा, ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. यस सर. एंड कंपैरिजन कैसे हो सकता है वो भी आपको समझ में आया होगा, आई होप. देखो, आपके जो टेक्स्ट बुक का जो फिगर है ना, वो थोड़ा ऐसा, मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसा है. देखो, आपको एग्जाम में ये टेक्स्ट बुक का फिगर ही ड्रॉ करना है. देखो वहां पे जिगजैग पैटर्न है ना, इसके लिए थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा है. देखो, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट इज द सेम. देखो, पहले हम क्या है कि पहले देखो ये फिगर को ध्यान से देखो. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम है ना स्विच ए को 1 को 3 के साथ मिलाएंगे. तो एट दैट टाइम बैटरी E2 विल बी इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट हो जाएगा, एंड नल पॉइंट मुझे N1 पर मिलेगा. अब फिर क्या करूंगा, मैं 1 एंड 3 का कनेक्शन निकाल दूंगा, फिर मैं 1 एंड 3 का कनेक्शन निकाल दूंगा, एंड फिर मैं 2 एंड 3 का कनेक्शन करूंगा. तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ. तो एट दैट टाइम E1 बिकम्स इररिलेवेंट, एंड E2 का मुझे नल पॉइंट मिलेगा N2 पे. बाकी तो वही का वही है. इज इट क्लियर? मतलब ये जो मैंने जो फिगर ड्रॉ किया था और ये जो फिगर है वो दोनों सेम ही है एक्चुअली, बट ये जिगजैग पैटर्न किया हुआ है ना, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा इसको समझने में. बट आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको ये समझ में आ गया होगा. इज इट ओके? यस सर. तो क्या लिखा है देखो फ्रेंड्स, एज शोन इन फिगर, अ बैटरी इज हैविंग EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स इज कैपिटल R, and a switch K is connected between the two end of AB is a potentiometer. तो ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है. To compare the EMF of the two cell E1 and E2, positive terminal of both the cell is connected with the point A, and the negative terminal is connected with the point 2 with the three-way switch. So 2, 3 and jockey can slide over the wire. Jockey can move over the wire. First, point A and C are connected. Experiment number 1 start हुआ. A को मैंने कनेक्ट किया 1 and 3 को, तो मतलब बैटरी 1 सर्किट में कनेक्ट हुआ. नल पॉइंट मुझे मिला L1 पे. तो यहाँ पे यूजिंग किर्चॉफ सेकंड लॉ के बदले आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सोचना है. तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, EMF ऑफ अ बैटरी इज इक्वल्स टू VL1 इज इक्वल्स टू सिग्मा और phi L1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 खत्म, इक्वेशन नंबर 1 खत्म. नाउ 1 इज कनेक्टेड विद द 2, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट हुआ, बैटरी नंबर 2 कनेक्ट किया, तो उसके लिए मुझे नल पॉइंट L2 पर मिला. तो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा L2 मतलब phi L2. E1 upon E2 is equals to L1 upon L. By this equation we can compare the EMF of the two cell. Vice versa, if one cell EMF यहाँ पे लिखा नहीं है, but आप सोच सकते हो, if the EMF of the one cell is known, then we can also obtain the EMF of the second cell. So this is the way the potentiometer works.
क्या ये फ्रेंड समझ में आया? यस सर। ओके, अब AI ट्रिपल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। AI ट्रिपल के अंदर ऐसा क्वेश्चन था कि दो बैटरी है, पहले दोनों बैटरी को सीरीज में हेल्पिंग मैनर में कनेक्ट किया हुआ है, एंड null point is found to be a length L1. Now both the cells are connected in the opposing condition in the series, but in the opposing condition, and the null point is obtained at the point L2. So what is E1 upon E2? So at that time most of the students ने mistake किया, उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि भाई E1 upon E2 is equals to L1 upon L2 कर दिया। भाई यहाँ पे केस थोड़ा अलग है। ये तो E1 upon E2 is equals to L1 upon L2 कब हमने प्रूव किया? जब हम इंडिविजुअली पहले बैटरी 1 के द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बैटरी 2 के द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इंडिविजुअली E1 एंड E2 जब हम सर्किट में लाते हैं तो मुझे नल पॉइंट L1 एंड L2 मिलता है, तो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस ये इक्वेशन मुझे मिलता है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले दोनों बैटरी को हेल्पिंग कंडीशन में कनेक्ट किया है, फिर दोनों बैटरी को अपोजिंग कंडीशन में कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर ये इक्वेशन नहीं बनेगा। तो कौन सा इक्वेशन बनेगा? तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा। नाउ टेकिंग कंपाउंड और डिविडेंड ऑफ बोथ द साइड्स, तो E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस E2, तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। E2 गेट कैंसल्ड, यहाँ पे E1 गेट कैंसल्ड, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2E1 अपॉन 2E2, सो L1 अपॉन प्लस L2 L1 माइनस L2, 2 गेट कैंसल्ड। तो अब जो इक्वेशन मिलेगा E1 एंड E2 का, सो दैट विल बी कम्स आउट टू बी दिस। तो क्या फ्रेंड्स ये बात आपको हजम हुई, समझ में आया? तो ये पूछा था AI ट्रिपल में, इसके लिए मैंने अलग से इसका एक नोट्स लेके यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है आपके MCQ में कि 2 बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बट एक बार दोनों बैटरी को साथ में सीरीज में हेल्पिंग मैनर में कनेक्ट किया हुआ है, एंड द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट द डिस्टेंस L1। दूसरी बार दोनों बैटरी को अपोजिंग कंडीशन में कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, एंड नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट द डिस्टेंस L2, then the ratio of E1 and E2 is not be equals to the L1 upon L2, it will be equals to L1 plus L2 upon L1 minus L2। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? Is it okay friends? Yes, sir. Okay friends, अब एक थियोरी जो है वो आपके बुक में नहीं है। अब मैं जो थियोरी करवाने वाला हूँ वो बुक में नहीं है, बट उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं, एंड JEE नीट के अंदर भी उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अब मैं जो थियोरी करवाने जाने वाला हूँ वो आप प्रिपेयर ना करो तो चलेगा, बट उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो रिजल्ट है, दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। मैं पूरा थियोरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, ऐसा कह सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द लास्ट थियोरी of this chapter, but it is not in your textbook, but still you have to remember its conclusions, because it is asked in the different competitive examination. In fact, we have a numerical in our textbook based on this theory. तो क्वेश्चन ऐसा है कि explain the method to measure the internal resistance of the cell। तो मुझे कोई सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पोटेंशियोमीटर का वी कैन यूज द पोटेंशियोमीटर बाय द 2 वे। मतलब पोटेंशियोमीटर के 2 एप्लीकेशन है, उसका यूज हम EMF के कंपैरिजन या EMF का मेजरमेंट करने के लिए तो उसका यूज हो ही सकता है, बट हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं कोई भी बैटरी का। So now we are going to discuss how we are able to find the internal
resistance of a cell. So once again, to make the circuit simpler, मैं है ना पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसको मैं zigzag पैटर्न के बदले मैं उसको ये सिंपल तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, बट वो है तो बिटवीन द ए बी ही, मतलब वो है तो ए एंड बी के बीच में ही है। चलो अब सपोज ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई बैटरी का ईएमएफ कैपिटल बी है, उसका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मैं R1 अज्यूम कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस में RH अज्यूम कर लेता हूँ, और ये जो बैटरी है उस एक बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, कोई बैटरी है उसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिस बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमारे पोटेंशियोमीटर के ए के साथ मिला दो, जिसका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, मतलब ये स्मॉल r जो है मुझे फाइंड करना है। और क्या करोगे आप, उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप क्या करोगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको कनेक्ट करोगे, और गैल्वेनोमीटर के साथ आप कनेक्ट करोगे जॉकी को, और वो जॉकी स्लाइड करेंगी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। ये तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे नया ऐसा है कि जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके पैरेलल में आपको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है, लेट दैट बी द R, कैपिटल R, और यहाँ पे एक स्विच करना है, स्विच के रखना है, बस इतना ही करना है। अब आपको 2 बार एक्सपेरिमेंट करना है, एक बार आपको स्विच ओपन रख के एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरी बार आपको स्विच को क्लोज करके वापस से एक्सपेरिमेंट करना है, दैट्स इट। तो ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। चलो इन द केस 1 कीपिंग switch K1 open, performing experiment मतलब sliding the jockey on the wire, performing the experiment का मतलब sliding jockey on the wire, null point is obtained, null point is obtained at point C1 where AC1 is equals to L1। मतलब अभी है ना स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है ना उसका कोई मायने ही नहीं रखता है। तो ये जो ब्रांच है ना वो है ही नहीं, वो डिस्कनेक्टेड है, ऐसा सोच सकते हो। तो अभी जो आगे के हमने देखा जो थ्योरी था तो उसी हिसाब से हम सोचने लगे, तो वापस से पैरेलल हुआ। तो पैरेलल हुआ मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ईएमएफ इज इक्वल्स टू राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड का as there is no current flowing from the battery, ईएमएफ बैटरी का जो वोल्टेज वो ईएमएफ जितना हो जाएगा, एंड वापस से पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का वोल्टेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का वोल्टेज, मतलब E1 इज इक्वल्स टू अभी जो हमने डिस्कस किया था आगे की थ्योरी में, दैट इज इन द सेम मैनर, इट इज अ सिग्मा और फाई। इक्वेशन नंबर 1।
Now case number 2. Now switch K1 is closed. अब स्विच को हम क्लोज करते हैं और एक बार वापस से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसा पता चलेगा कि अब नल पॉइंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। अब नल पॉइंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। अब नल पॉइंट का जो पोजीशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट अब ये स्विच को मैंने क्लोज किया हुआ है, तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो कॉम्बिनेशन में आएगा। तो अब क्या होगा, नो डाउट द करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर इज अ जीरो। नल पॉइंट मिला मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो करंट पास नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो करंट पास नहीं होगा, बट यहाँ पे एक सर्किट क्लोज हो रहा है। देखो यहाँ पे एक सर्किट क्लोज हो रहा है, तो मतलब ये जो पार्ट है वहां पे करंट फ्लो होगा। तो अब जो बैटरी का जो वोल्टेज है, अब जो बैटरी का वोल्टेज है ना, वो उसके ईएमएफ जितना नहीं रहेगा। वो कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? नाउ करंट इज flowing from the battery. तो कोई मुझे बताएगा द पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी विल बी इक्वल्स टू? बोलो, कोई बताएगा? E minus IR. परफेक्ट। पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी will be not the EMF, will be equals to E minus IR. Now suppose null point is obtained, null point is obtained at a C2. तो अभी ये C2 पॉइंट पे null point obtained at C2 where AC2 is equals to L2. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करो। तो मतलब वापस से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, ये ब्रांच का ये जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस एंड इसका रेजिस्टेंस, उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पैरेलल में दोनों ब्रांच है, बट ये जो राइट हैंड साइड जो है वो तो अभी क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल अभी कितना है, अभी वो E नहीं है, अभी वो V है। V is equals to VL2, that is equals to sigma L2, equation number 2. Now from equation number 1 and 2 I can say E by V, from equation number 1 and 2 I can say E by V is equals to L1 upon L2. अब EMF का वैल्यू कितना होगा, तो ये जो क्लोज लूप है यहाँ पे KSL अप्लाई करो, ये क्लोज लूप पे किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करो। तो अगर आप यहाँ पे किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोचो यहाँ से हमने स्टार्ट किया अप्लाई करना, तो कुछ भी नहीं है, विद द करंट माइनस IR, विद द करंट माइनस I स्मॉल r इज इक्वल्स टू माइनस EMF। वैसे ये आपको पता ही है ना, वैसे ये ना करो तो भी आपको पता ही है। अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि एक ही बैटरी है तो ये करंट का वैल्यू क्या होता है, एक ही बैटरी है, एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो करंट का वैल्यू आपको वैसे भी पता है कि ये R प्लस R होता है। So now from figure I can say the EMF is equals to I into R plus R, and I can also say that the E minus IR becomes I capital R, and that was actually a terminal voltage. The terminal voltage becomes I capital R. So now putting this value in the equation number 3, so EMF का and terminal voltage का value सब substitute करते हैं, तो EMF का हो जाएगा I into R plus R, terminal voltage का हो जाएगा I capital R is equals to L1 upon L2. I get cancelled,
तो r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. डिवाइडिंग पर्सनली तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1. तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू r इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1. तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स will help us to find the internal resistance of the cell. तो इसमें क्या करना होता है कि एक बार वो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है ना उसका स्विच ओपन करके एक्सपेरिमेंट करना होता है और दूसरी बार उसका स्विच क्लोज करके एक्सपेरिमेंट करना होता है. दोनों एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको नल पॉइंट का पोजीशन L1 एंड L2 मिल जाएगा. पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ आपको पता ही होगा, मतलब वो R कैपिटल आपको आपके लिए कैपिटल R नोन है. Capital R is known for us. L1 and L2 can be obtained from the experiment and capital R is known for us. तो उसके द्वारा मुझे ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा. तो ये जो थ्योरी है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट उसके बेस पे न्यूमेरिकल है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछते हैं. तो फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है वो वापस से अगर आप टेक्स्ट बुक में मतलब मेरे नोट्स में देखोगे तो आपको थोड़ा सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा बिकॉज वो जिगजैग पैटर्न ना इसलिए. अदरवाइज द कंसेप्ट इज द सेम. देखो ये जिसका इंटर रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, एक स्विच भी रखा हुआ है. एक बार स्विच को ओपन करके एक्सपेरिमेंट किया तो इक्वेशन नंबर 1 मिला. एक बार स्विच को क्लोज करके एक्सपेरिमेंट किया तो इक्वेशन नंबर 2 मिला. इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2. नाउ बाय ओम्स लॉ EMF इज इक्वल्स टू I into R plus R and voltage V equals to IR. तो finally we are able to get this formula. और ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, भले ही आप थियरी प्रिपेयर ना करो बट ये फॉर्मूला याद रखना है. और याद ऐसा भी रखना है कि ये L1 क्या है. तो L1 इज द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट व्हेन द स्विच इज ओपन. जब स्विच को ओपन करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नल पॉइंट L1 पे मिलता है और स्विच को क्लोज्ड करने के बाद अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नल पॉइंट L2 पे मिलता है. तो ये L1 and L2 are the null point distance when the switch is open and switch is closed. तो यहाँ पे ये चैप्टर के सारे थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा दूंगा. एक न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं यहाँ पे. तो न्यूमेरिकल्स ओके. तो फ्रेंड्स वैसे इलस्ट्रेशंस तो सारे खत्म हो गए हैं. अब एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, come to the last question of the exercise. देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23. Figure shows a 2-volt potentiometer used for determining the internal resistance of the cell. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. अ बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट, मतलब स्विच को ओपन किया है तो बैलेंस पॉइंट का लेंथ मिला हुआ है. हाँ, वो जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है वो 9.5 ओम है. एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड then the balance point is shifted to the 64.8. and what is the value of the internal resistance? तो उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है. so this one is the formula R into 1 L1 upon L2 minus 1. L1 upon L2 minus 1 वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, उसका एलसीएम लिया हुआ है. तो इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया न्यूमेरिकल्स? क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर.
तो फ्रेंड्स और भी एक आध दो न्यूमेरिकल्स पोटेंशियोमीटर के बेस पे है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 2-3 न्यूमेरिकल्स को खत्म करके मैं आपको टेक्स्ट बुक वाले जो एमसीक्यू है, मैंने 2 टाइप के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू एंड एक सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग आपको करना है, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू मैं कराऊंगा आपको। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। दूसरी बात, कल जेडबलई का लेक्चर जो है ना, उसका मुझे टाइम थोड़ा शिफ्ट करना है। किसी को कल मॉर्निंग में स्कूल होती, जेडबलई नीट में जो आते हैं बच्चे, तो उन लोगों का कोई स्कूल होता, मॉर्निंग में स्कूल है फ्रेंड्स? नो सर। लेक्चर है कितने बजे है? 9 to 10:30। ओके, 9 to 10:30। ओके, तो अच्छा, कल जस्ट अ मिनट, can I arrange the lecture on 7:30 to 9 on the morning, 7:30 to 9? सर 7:30 बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, can I arrange 10:30 to 12? हाँ सर चले। 10:30 से 12 बजे चलेगा? क्या रहे कई दिन से जेडबलई નો લેક્ચર કાલે છે ને, મને ફાવ્યું નથી બપોરે, so I want to for the tomorrow I want to shift the lecture